بھی خوشنما ہو جائے گی۔ اس لیے آپ سبھی سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک دیکھیں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اگر راستہ خوبصورت ہے تو پتہ کرو کہ کس منزل کو جاتا ہے، لیکن اگر منزل خوبصورت ہے تو راستے کی پرواہ مت کرو۔ جس سے محبت کی جائے اس سے مقابلہ نہیں کیا جاتا۔ کسی کو پا لینا محبت نہیں، بلکہ کسی کے دل میں جگہ بنا لینا محبت ہے۔ لوگوں کو دعا کے لیے کہنے سے زیادہ بہتر ہے کہ ایسے اعمال کرو کہ لوگوں کے دل سے آپ کے لیے دعا نکلے۔ وقت اور دولت دو چیزیں ہیں جو انسان کے اختیار میں نہیں۔ وقت انسان کو مجبور اور دولت انسان کو مغرور بنا دیتی ہے۔ لوگ پیار کے لیے ہوتے ہیں اور چیزیں استعمال کے لیے۔ بات تب بگڑتی ہے کہ جب چیزوں سے پیار اور لوگوں کو استعمال کیا جائے۔ انسان کو اچھی سوچ پہ وہ انعام ملتا ہے جو اچھے اعمال پہ بھی نہیں ملتا، کیونکہ سوچ میں دکھاوا نہیں ہوتا۔ مجھے دعا قبول ہونے کی فکر نہیں، مجھے صرف دعا مانگنے کی فکر ہے، کیونکہ جب مجھے دعا مانگنے کی توفیق ہو گئی ہے تو قبولیت بھی اس کے ساتھ حاصل ہو جائے گی۔ جس طرح شبنم کے قطرے مرجھائے ہوئے پھولوں کو تازگی دیتے ہیں، اسی طرح اچھے الفاظ مایوس دلوں میں روشنی بھرتے ہیں۔ اچھے لوگوں کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ ان کو یاد رکھنا نہیں پڑتا، وہ یاد رہ جاتے ہیں۔ انسان اپنی توہین معاف تو کر سکتا ہے پر بھول نہیں سکتا۔ انسان کا فضول شوق میں وقت کھو دینا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ اس سے ناراض ہے۔ اگر تو پہاڑ سے گرے تو یہ تیرے لیے اتنا نقصان دہ نہیں ہے جتنا کہ تو کسی کی نظروں سے گر جائے۔ غریب کی مدد کرو، اس کا دل نہ دکھاؤ اور اس کا احساس کرو، کیونکہ غریب ہونے میں زیادہ وقت نہیں لگتا۔ جس کا رابطہ اللہ سے ہو وہ ناکام نہیں ہوتا۔ ناکام وہ ہوتا ہے جس کی امیدیں دنیا سے وابستہ ہوں۔ جب تمہاری جان کو خطرہ ہو تو صدقہ دے کر جان بچاؤ، اور جب تمہارے دین کو خطرہ ہو تو جان دے کر دین بچاؤ۔ جب تم دنیا کی مفلسی سے تنگ آ جاؤ اور رزق کا کوئی راستہ نہ نکلے تو صدقہ دیا کرو اور اللہ سے تجارت کرو۔ انسان گناہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں نہیں جاتا، بلکہ گناہ پر مطمئن رہنے اور توبہ نہ کرنے کی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عذاب کرنا مقصود ہوتا تو ان کو رمضان اور سورہ اخلاص یعنی قل هو اللہ احد ہرگز عنایت نہ فرماتا۔ شراب کے نشے میں چور تو کچھ دیر میں ہوش میں آ جاتا ہے، مگر تکبر اور غفلت میں پڑے لوگوں کو ہوش میں آنے میں بہت دیر لگتی ہے۔ دنیا میں جو امیر ہیں اور خیرات نہیں کرتے، آخرت میں وہ سب سے زیادہ غریب ہوں گے۔ انسان کس سے زیادہ محبت کرتا ہے؟ اولاد کے مرنے پر آدمی کو نیند آ جاتی ہے، مگر مال کے چھن جانے پر نیند نہیں آتی۔ خوش نصیب وہ نہیں جس کا نصیب اچھا ہے، بلکہ خوش نصیب وہ ہے جو اپنے نصیب پر خوش ہے۔ اے اللہ، میں تجھ سے دعا صرف اس لیے مانگتا ہوں کہ تیرا حکم ہے، ورنہ میں کون ہوتا ہوں تجھے مشورہ دینے والا کہ میرے لیے کیا بہتر ہے۔ خوف الہی گناہوں سے دور رکھنے کا اچھا ذریعہ ہے۔ چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بچو، کیونکہ یہ چھوٹے چھوٹے گناہ ہی بڑے بڑے گناہوں کی طرف بلاتے ہیں۔ انسانیت بہت بڑا خزانہ ہے، اسے لباس میں نہیں انسان میں تلاش کرو۔ دوسروں کے محل میں غلامی کرنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنی جھوپڑی میں حکومت کرے۔ جو خدا کو ناراض کر کے لوگوں کی خوشنودی حاصل کرنا چاہے تو خدا اس کو لوگوں پر ہی چھوڑ دیتا ہے۔ صورت اور سیرت میں سب سے بڑا فرق یہ ہے کہ صورت دھوکہ دیتی ہے جبکہ سیرت پہچان کراتی ہے۔ جس کی نگاہیں آزاد ہوں اس کا دل رنجیدہ ہوتا ہے۔ جو بار بار
आजादाना निगाह करता है वो हमेशा हसरतों में मुब्तला रहता है। जब तुम सुकून की कमी महसूस करो तो अपने रब की बारगाह में तौबा करो, क्योंकि इंसान के गुनाह ही हैं जो दिल को बेचैन रखते हैं। ऐ इब्ने आदम, जाहिर पर न जा, आग दिखने में सुर्ख लगती है पर उसका जलाया हुआ सियाह हो जाता है। बस दुनिया बज़ाहिर खूबसूरत और उसका जलाया हुआ बदसूरत है। बुरी आदत की ताकत का अंदाजा तब होता है जब उसे छोड़ने की कोशिश की जाती है। गुनाहों से तौबा का फायदा ये है कि सजा से निजात मिलती है। बुरी आदतों से पाक होने का फायदा ये है कि जन्नत और उसमें ऊंचे दर्जात मिलते हैं। किसी पर एहसान करो तो उसको छुपाओ, अगर तुम पर कोई एहसान करे तो उसे जाहिर करो। किसी से मोहब्बत करने से पहले अपने दिल में कब्रिस्तान बना लो ताकि उसकी छोटी छोटी गलतियों को दफना सको। तुम काला लिबास मत पहना करो, क्योंकि बेशक ये फिरौन का लिबास है। किसी को पाने की तमन्ना मत करो, बल्कि इस काबिल हो जाओ लोग आपको पाने की तमन्ना करें। अगर तुम किसी को छोटा देख रहे हो तो तुम उसे दूर से देख रहे हो। तुम अच्छा करो और जमाना बुरा समझे, ये तुम्हारे हक में बेहतर है, बजाय इसके तुम बुरा करो और जमाना तुमको अच्छा समझे। इंसान के आंसू उस वक्त मुकद्दस होते हैं जब वो किसी और की तकलीफ महसूस करे। ना इंसान अपनी मर्जी से पैदा हुआ और ना अपनी मर्जी से मरेगा, फिर वो इनके बीच का अरसा अपनी मर्जी से क्यों गुजारना चाहता है। इल्म दीन को रोशनी देता है। दौलत की लालच से बच, दौलत की लालच अंधा बना देती है। जब इंसान की अकल मुकम्मल हो जाती है तो उसकी गुफ्तगू मुख्तसर हो जाती है। इंसान अपनी जिंदगी में हर चीज के पीछे भागेगा, मगर दो चीजें उसका पीछा करेंगी, एक उसकी रोजी और दूसरी उसकी मौत। सबसे बड़ी बहादुरी सब्र करना है, सबसे बड़ी बला नाउम्मीदी है, सबसे बड़ा उस्ताद तजुर्बा, सबसे बड़ा फायदा नेक औलाद। कभी अपने दोस्त की सच्चाई का इम्तिहान ना लो, क्या पता उस वक्त वो मजबूर हो और तुम एक अच्छा दोस्त खो बैठो। लाखों को दोस्त बनाना कोई बड़ी बात नहीं, बड़ी बात यह है कि ऐसा दोस्त बनाओ जो तुम्हारा साथ उस वक्त दे जब लाखों तुम्हारे दुश्मन हों। मुश्किल वक्त आ जाए तो किसी का एहसान मत लो, क्योंकि मुश्किल वक्त 4 दिन का और एहसान जिंदगी भर का होता है। किसी के खुलूस और प्यार को उसकी बेवकूफ़ी मत समझो, वरना किसी दिन तुम खुलूस और प्यार तलाश करोगे और लोग तुम्हें बेवकूफ़ समझेंगे। मोहब्बत की पहली शर्त इज्जत है, और जो इज्जत नहीं दे सकता वो सच्चा प्यार भी नहीं दे सकता। अदब यह है कि जब तुम अपने घर से बाहर निकलो तो जिससे भी मुलाकात करो उसको अपने से बेहतर जानो। किसी को चाहना हो तो दिल से चाहो, जुबान से नहीं, और किसी पर गुस्सा करो तो सिर्फ जुबान से, दिल से नहीं। और तुम्हारी तकदीर इतनी दफा बदलती है जितनी दफा तुम अल्लाह के आगे हाथ फैलाते हो। नसीहत दूसरों के हाल पर गौर करने से हासिल होती है। जहालत एक किस्म की मौत है और जाहिल लोग चलती फिरती लाशें हैं। गुस्सा जब आता है तन्हा आता है, लेकिन जाते हुए अपने साथ अकल, अखलाक और खूबसूरती को भी ले जाता है। दुनिया को खरीदना बेवकूफ लोगों की तिजारत है। जिस शख्स के दुश्मन ना हों और सब दोस्त हों, उस जैसा मुनाफिक कोई नहीं, क्योंकि दुश्मन उसके होते हैं जो हक की बात कहता है। बुरे इंसान की सोहबत से परहेज करो, क्योंकि वो तलवार की तरह है, देखने में खूबसूरत और असर में खतरनाक है। तंग दस्ती में सखावत करना, गुस्से में सच बोलना, ताकत के होते हुए माफ करना अफजल तरीन नेकियों में से है। तुम किसी के साथ भलाई करो और तुम्हें उसका बदला बुराई की सूरत में मिले,
तो समझ लो कि तुम्हारी नेकी कबूल हो गई। अपने वो नहीं होते जो रोने पर आते हैं, बल्कि अपने वो होते हैं जो रोने ही नहीं देते। लंबी दोस्ती के लिए 2 चीजों पर अमल करो। अपने दोस्त से गुस्से में बात मत करो और अपने दोस्त की गुस्से में कही हुई बात अपने दिल पर मत लो। दोस्ती की जीनत एक दूसरे की बात को बर्दाश्त करना है। बेऐब दोस्त तलाश मत करो, वरना अकेले रह जाओगे। हरगिज ऐसे शख्स की दोस्ती इख्तियार ना करो जो तुम्हारी बुराइयों को याद रखे और खूबियों को भूल जाए। मुझे वो दोस्त पसंद है जो महफिल में मेरी गलतियां छुपाए और तन्हाई में मेरी गलतियों पर तनकीद करे। इंसान जिंदगी से मायूस हो तो कामयाबी भी नाकामी नजर आती है। जिंदगी उस्ताद से भी ज्यादा सख्त होती है। उस्ताद सबक देकर इम्तिहान लेता है और जिंदगी इम्तिहान लेकर सबक देती है। जिंदगी को जरूरियात की तरफ ले जाओ, ख्वाहिशात की तरफ नहीं, क्योंकि जरूरियात तो फकीरों की भी पूरी हो जाती हैं और ख्वाहिशात बादशाहों की भी अधूरी रह जाती हैं। अमल से बढ़कर उसकी कबूलियत का एहतिमाम करो, इसलिए कि परहेजगारी के साथ किया गया थोड़ा भी अमल बहुत होता है, और जो अमल मकबूल हो जाए वो कैसे थोड़ा होगा। हर वो दिन जिसमें अल्लाह ताला की नाफरमानी ना की जाए हमारे लिए ईद का दिन है। जो शख्स ये गुमान रखता है कि नेक आमाल अपनाए बगैर जन्नत में दाखिल होगा तो वो झूठी उम्मीद का शिकार है। खर्च करो, तशरीह यानी दिखावा ना करो, और खुद को इसलिए बुलंद ना करो कि तुम्हें पहचाना जाए और तुम्हारा नाम हो, बल्कि छुपे रहो और खामोशी इख्तियार करो, सलामत रहोगे। गुनाहों की नहुसत से इबादत में सुस्ती और रिस्क में तंगी आती है। बंदा बेसब्री करके अपने आप को हलाल रोजी से महरूम कर देता है और इसके बावजूद अपने मुकद्दर से ज्यादा हासिल नहीं कर पाता। जिस तकलीफ के बाद जन्नत मिलने वाली हो वो तकलीफ नहीं, और जिस राहत का अंजाम दोज़ख पर हो वो राहत नहीं। दोस्त की कोई बात बुरी लगे तो खामोश हो जाओ। अगर वो दोस्त है तो उसे उस बात का रंज होगा, और अगर ना हुआ तो तुम समझ लेना कि वो तुम्हारा दोस्त नहीं। खास और आम दोस्त में इतना ही फर्क होता है। आम दोस्त सिर्फ तारीफ करता है, लेकिन खास दोस्त तारीफ के साथ साथ तनकीद भी करता है। जो जरा सी बात पे दोस्त ना रहे, समझ लेना वो दोस्त कभी था ही नहीं। वो लोग किसी के नहीं होते जो दोस्त और रिश्ते को लिबास की तरह बदलते हैं। जिस दरख्त की लकड़ी नरम होगी उसकी शाखें ज्यादा होंगी। नरम तबीयत इख्तियार करो ताकि तुम्हारे दोस्त ज्यादा हों। हर किसी को इतनी अहमियत दो जितनी वो तुमको देता है। अगर कम दोगे घमंडी कहलाओगे, और अगर ज्यादा दोगे तो खुद गर्ज बन जाओगे। गुफ्तगू ऐसी चीज है जिसकी वजह से इंसान या तो दिल में उतर जाता है या फिर दिल से उतर जाता है। इंसान भी क्या चीज है, दौलत कमाने के लिए अपनी सेहत खो देता है, फिर सेहत को वापस पाने के लिए अपनी दौलत खोता है। मुस्तकबिल को सोचकर अपना हाल जाया करता है, फिर मुस्तकबिल में अपना माजी याद करके रोता है। जीता ऐसे है जैसे कभी मरेगा ही नहीं, और मर ऐसे जाता है जैसे कभी था ही नहीं।